صحابی لیٹے ہوئے ہیں آفٹر دا بیٹل آف جنگ بدر. اب ہم لوگ بدر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جنگ بدر فوٹو کھینچوا رہی ہے کون دو واپس ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں وہاں پہنچیں گے. اور یہ جنگ بدر اسلام کی کون سی جنگ ہے؟ پہلی جنگ ہے. کتنی ہجری میں پیش آئی؟ دو ہجری میں پیش آئی. جن کی توجہ ہے ان کو بات یاد رہے گی انشاءاللہ. اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری میں پیش آئی اور 17 رمضان المبارک کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ 17 رمضان المبارک. اس جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ اس جنگ کی نوبت اس لیے آئی کہ کفار کی مشرکین مکہ کی جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، وہ صرف یہی تھی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو دنیا سے مٹانا، کفر کو غالب کرنا، اسلام کو مٹانا کی تھی. تو انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا. آپ کا ارادہ جنگ کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور کی جو مدنی زندگی ہے، مکی زندگی ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں 10 سال نبوت کے بعد گزاری، کوئی جنگ نہیں. مدینہ پہنچے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. اس جگہ پر سن 2 ہجری کی بات ہے، کافروں نے پھر میٹنگ کر کے مشورہ کر کے چندہ اکٹھا کیا کہ نعوذ باللہ اس چندے سے جنگی آلات خریدیں، جنگی ساز و سامان خریدیں اور پھر حضور علیہ السلام کی ہستی کو، آپ کے ماننے والوں کو دنیا سے ختم کریں. انہوں نے جب یہ میٹنگ کر کے چندہ اکٹھا کیا تو عورتوں نے بھی اپنے کانوں کی بالیاں وغیرہ اتار کر سب کچھ دے دیا کافروں کی عورتوں نے. جب یہ ایک قافلہ 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، مکہ سے شام کی طرف گیا، جنگی سازو سامان خرید کر شام سے مکہ کی طرف واپس جانے والا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی. آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے صبح جو آپ کو مسجد سگئی دکھائی، وہاں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ان 40 لوگوں پر ہم حملہ کرتے ہیں اور یہی جنگی ساز و سامان ابھی سے چھین لیں، تاکہ اس سے بعد میں ہمارے لیے کوئی خطرہ کھڑا نہ ہو. 313 صحابہ تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، اور صرف حملہ کرنا تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. اور آگے تعداد بھی تھوڑی سی تھی. 313 یہ جو تھے تھوڑے سے، ان کے پاس نہ گھوڑے، چند گھوڑے تھے، 2 اونٹ تھے روایت کے اندر آتا ہے، یا 6، اور چند تلواریں تھیں. یہ جب ان کا پیچھا کرنے لگے تو ان لوگوں کو اطلاع مل گئی. منافق کیونکہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں. ان لوگوں کی کفالت کر رہے تھے اس وقت ابو سفیان، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ جو 40 آدمیوں کا گروہ تھا، مدینہ سے ان کا جب گزر ہونے لگا، آپ علیہ السلام نے ان کا پیچھا کیا. ان کو اطلاع ملی. انہوں نے ایک آدمی کو مکے کی طرف بھیجا، وہاں سے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سے مدد لی جائے. یہ کافر جو مکے کی طرف گیا، اس نے اپنے اونٹ کے دونوں کان کاٹے، اپنے ہی کان میں کوئی ایسی چیز مار کر، سلائی وغیرہ لگا کر خون آلود ہو کر گیا، تاکہ اس حال میں پہنچے جس طرح کے جنگ سے ہو کر آ رہا ہے. وہاں کے لوگ بھڑکے اور جلدی سے روانہ ہو. یہ جب آدمی وہاں پہنچا، ابو جہل نے دیکھا 1000 کا اس نے لشکر تیار کیا. سب کے پاس گھوڑے، سب کے پاس آلات، جنگی ساز و سامان، سب کے پاس تلواریں اور زرے تھے. ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 313، جس میں بچے بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، جنگی آلات بھی نہیں، مسائل بھی سخت. ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے. ادھر سے کافر یہاں پہنچے 1000 کا لشکر. مسلمان جب 313 یہاں پہنچے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں کی بھاری اکثریت ہے. ابو جہل جب وہاں سے روانہ ہوا 1000 کے لشکر کے ساتھ، تو ناچنے گانے والی عورتیں بھی ساتھ لایا، اس خیال سے، گھمنڈ اور تکبر سے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں، اسلحہ ہمارے
जंग के दौरान जिस जगह पर हुजूर अलैहिस्सलाम का खैमा था, उसी जगह पर ये मस्जिद तामीर है जिसका नाम है मस्जिद अल अरीश। क्या नाम है? मस्जिद अल अरीश। जंग के मैदान में उसी जगह पर हुजूर अलैहिस्सलाम का खैमा था। अरीश अर्श के माना में है साहिबान, यानी छत के है। उसी जगह हुजूर का खैमा था। आपने वहां बैठकर ये दुआ फरमाई थी। और हर मैदान में, बदर में, ओहद में, तबूक में, खंदक में, यरमूक में, हर मैदान में जो कुर्बानियां देने वाले हैं वो है सहाबा। कौन है? सहाबा। कौन है? सहाबा। सहाबी कहते किसको है? हर मैदान में जिन्होंने अपनी जानें पेश कर दी, अपनी कुर्बानियां दे दी इस्लाम के लिए, दीन के लिए, न घर को देखा, न बीवियों को देखा, न बच्चों को देखा, ऐसे ऐसे सहाबी भी हैं। हजरत हंजला जो कि ओहद के मैदान में शहीद हुए, एक रात की शादी थी, सुबह ऐलान जंग हुआ, तहारत की जरूरत थी, अभी नापाक हालत में थे, तहज्जुद का वक्त था, ऐलान जंग हुआ कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, आओ जाओ निकलो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। तो इन्होंने चादर ली, तलवार ली, बगैर गुस्ल किए निकल पड़े, जाकर ओहद के मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। और शहीद की ये फजीलत है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, कफन पहनाकर उसको दफना दिया जाता है। और क़यामत वाले दिन जब शहीद उठेगा उसका खून उसी तरह बहता हुआ होगा। शहीद की ये फजीलत है। और ये नापाक हालत में थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और फरमाया, सहाबा कराम इधर आओ, हंजला को देखो, फरिश्ते आसमान से पानी ला रहे हैं और गुस्ल दे रहे हैं, जो कि नापाक हालत में थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका इल्म नहीं था। सुबह तहज्जुद के वक्त उठे, तहारत की जरूरत थी, नापाक हालत में चल दिए, लड़ते हुए शहीद हो गए। आगे फिर फरिश्तों ने आसमान से पानी लाकर, हौज़े कौसर का पानी लाकर फरिश्तों ने हजरत हंजला को गुस्ल दिया। सहाबी होना ये एक बहुत बड़ी फजीलत है। सिर्फ सहाबी रसूल होना बहुत बड़ी सआदत है। एक सहाबी उसी ओहद के मैदान में शहीद हुए जिनका नाम है उसैरम। यानी सहाबी की तारीफ ये है जिसने ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया और ईमान ही की हालत में मौत है, इसको सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया और ईमान ही की हालत में मौत है, इसको सहाबी कहते हैं। एक सहाबी जो ओहद के मैदान में शहीद हुए, सिर्फ सहाबी रसूल है। जिंदगी में और कोई नेकी नहीं, जिंदगी में एक नमाज नहीं, एक उम्रा नहीं, एक मिनट की तिलावत नहीं, कोई और नेकी नहीं, सिर्फ सहाबी रसूल है। अल्लाह ने वो मकाम दिया। आपने पहले पेशन गोई फरमाई, उसैरम फिल जन्नत, और जिसको हुजूर जन्नत की टिकट दे दें, उसैरम फिल जन्ना, आपने पेशन गोई फरमाई कि उसैरम जन्नती है। क्या नाम है? उसैरम। ये ऐसे सहाबी हैं, यही ओहद का मैदान लगा हुआ था, सुबह नमाज के बाद ईमान ले आए और ज़ुहर से पहले लड़ते हुए शहीद हो गए। सुबह यानी सहाबी की तारीफ इसी आसान लफ्जों में समझें। सुबह ईमान लाए, नमाज के बाद, ज़ुहर से पहले जन्नत में, इसको सहाबी कहते हैं। और हर मैदान में इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इसी बदर के मैदान में जो सहाबा कराम को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया था, हर सहाबी के मुकाबले में आने वाले जो कुफ्फार थे, सहाबा कराम के करीबी रिश्तेदार थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस है, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मुझसे मोहब्बत अपने अबा अजदाद, अपने बहन भाइयों और अपने अजीज़ों अकारिब से ज्यादा न करो। इस हदीस के मुताबिक इस मैदान में सहाबा कराम के मुकाबले में कोई मामू आया तो सर कलम, भाई आया तो काट दिया, हत्ता के बाप आया तो भी सर कलम कर दिया। इसी हदीस के मुताबिक क्योंकि हुजूर ने जब फरमा दिया, आपने हजरत उमर से मशवरा किया, उमर सफ़ों की तरतीब कैसे बनाए, इसी मैदान में सफ़ों की तरतीब कैसे बने। हजरत उमर ने फरमाया, आका जो जिसके रिश्तेदार आए हैं उसी के हवाले करो, वही गर्दनें काट कर लाएगा। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन
किला से जो आगे ग्रुप बैठा है इनका खाना जो होता है होटल की तरफ से है, उधर होटल पे ही होता है। इसीलिए बार बार यही कह रहे हैं कि वक्त की बचत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उतारेंगे यहाँ आपको होटल पे, जो पीछे था उधर 1 मिनट 10 मिनट के लिए, जिसको खाना चाय वगैरह पीनी होगी वहाँ रोकेंगे, क्योंकि शेयरिंग की गाड़ी है, ग्रुप होता है, फिर नहीं रोकेंगे। तो इन सहाबा कराम को बदर के मैदान में जो कुर्बानियां देनी पड़ी वो क्या थी कि हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैदान बदर में जिसने काफिरों ने जिसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया वो मेरा सगा भाई था। एक साथ, क्योंकि एक ही घर में पैदा हुए, एक साथ उठना बैठना भी याद था, एक साथ खेलना कूदना भी याद था, एक साथ खाना पीना भी याद था। लेकिन जब काफिरों ने मैदान बदर में मेरे मुकाबले में जिसको खड़ा कर दिया वो मेरा सगा भाई था, फिर उसी हुजूर की हदीस के माताहत अपने ही मैंने भाई का गला काटा और हुजूर का दीन बचा लिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अशरा मुबशरा सहाबी में से। अबू उबैदा अशरा कहते हैं 10 को मुबशरा, जिनको बिशारत दी गई, जिनको खुशखबरी दी गई जन्नत की, एक ही वक्त में एक ही मजलिस में जिन 10 सहाबा कराम को हुजूर ने जन्नत की बिशारत सुनाई वो हैं अशरा मुबशरा। उन्हीं में से अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं। वो फरमाते हैं कि बदर के मैदान में काफिरों ने जिसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया वो मेरा सगा बाप था। मेरे लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश, इम्तिहान की बात थी कि बाप का सर बचाऊं या नबी का दीन बचाऊं। हुजूर की हदीस मुझे भी ये याद थी, आपने फरमा दिया कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं जब तक तुम मुझसे मोहब्बत अपने अबो अजदाद से ज्यादा न करो। तो ये सिर्फ आज आप सुन रहे हैं और मैं कह रहा हूँ, ये बात करना इतना आसान है, बात सुनना इतना आसान है। उस वक्त की आप हालत पैदा करके देख सकते हैं कि जब आपका बाप सामने खड़ा हो, खा वो काफिर ही क्यों न था, जब मैदान में आया इन हजरात ने हमारे लिए अपनी रिश्तेदारियों को नहीं देखा। बाप जो आया सर कलम कर दिया और नबी का दीन बचा दिया। इसीलिए हमारा यहाँ आने का यही मकसद होता है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो शख्स इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। हम यहाँ तशरीफ आए हैं इसी गर्ज से कि इन हजरात का शुक्रिया अदा करें। वो किस तरीके से कब्रिस्तान के पास खड़े होकर सलाम पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे, फिर उसी जगह पर खड़े होकर 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उन हजरात के लिए दुआ भी करेंगे, अपने लिए, अपने अबा अजदाद के लिए और बाकी काफिरों के लिए। जो इधर इसी मैदान में जलालत वाली बात थी वो ये थी कि अबू जहल जितने बड़े तकब्बुर वाला था, बड़े गरूर वाला था, अल्लाह ने उतना ही ज्यादा जलील किया। जलील किस तरह किया? 2 बच्चों के हाथों मरा दिया, और बच्चे भी छोटे इतनी थे, रिवायत में आता है जिनकी तलवारें उनके कद से बड़ी थी। इतने छोटे बच्चों से अल्लाह ने इतने बड़े मुशरिकीन मक्का के बड़े सरदार को मरा दिया। काफिरों के लिए ये बड़ी जलालत वाली बात थी। हजरत मुआज और मुअव्वज रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इसी तरह और भी ये कच्चे मकान उस वक्त के पता नहीं या आबाद के हैं, अल्लाह आलम। यही 4 दीवारी जो है यही कब्रिस्तान है। कब्रों की निशानदही कोई नहीं, कब्रों की निशानदही कोई नहीं। इसी 4 दीवारी के अंदर 14 सहाबा आराम पजीर। तो इसीलिए आप यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए नहीं। ये है वो कब्रिस्तान जहाँ सारे सहाबी लेटे हुए हैं आफ्टर द बैटल ऑफ जंग बदर। अब हम लोग बदर की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पूरा कब्रिस्तान है, हम लोगों ने दुआ पढ़ लिया है। देखिए यहाँ से व्यू, और वो जो दिख रहा है वो 14 सहाबियों के नाम हैं।
ویری بیوٹیفل پلیس. یقین نہیں آتا یار, جنگ ونگ, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. چلیے اب چلتے ہیں بس میں. یہ ہم لوگ اب جا رہے ہیں جنگ بدر کی ہو گئی, جہاں اسلام کا پہلا جنگ چھڑا تھا. اور یہ ہے مسجد العریش, جہاں ہم لوگ ظہر کی نماز ادا کریں. کہہ رہے تھے یہ گائیڈ والے تھے اس وقت جنگ کی شروعات میں, جس وقت بارش ہو رہی تھی اس وقت حاجی 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 دے سنگھ, حاجی 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 حاجی. چلو کہاں گیا گاڑی؟ ایک تھوڑا سائڈ دیجیے جگہ. یہی میدان جنگ بدر فوٹو کھینچوا رہی ہے کون دو واپس ہے. بعد میں